द बिगेस्ट लीफ साइज, सबसे चौड़ा पत्ता वाला लिबेरिका है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्री कॉफ़ी। सो इसलिए इसको काटते नहीं है, पेड़ जैसे अराउंड 30-40 फीट तक उग जाते हैं। So basically it is a cross pollination of Arabica and Robusta. So medium size leaf वाला those are all Robusta plants. So those are called tree legs actually. Coffee plant भी नहीं है, tree भी नहीं है, उसके बीच में tree legs बोलते हैं। So इधर सबसे छोटा पत्ता वाला plant this is Arabica. So Arabica, Robusta and Liberica. So Liberica initially came down to India. It was brought, the seeds were brought from Liberia. So other two from Ethiopia in the early 12th century actually, coffee. So India में enter हुआ था वो 17th century, late 17th century में. So it was bought by a बाबा जी और monk by the name of बाबा बुडन. पहली बार उन्होंने अफ्रीका से चोरी करके लाना पड़ा 7 seeds, those were called magical seeds. And पहली बार वो प्लान किया था चिकमंगलूर में. That is even famously called as बाबा बुडनगिरी hills आज भी. So वहाँ से शुरू हुआ कॉफ़ी का स्टोरी इंडिया में. So gradually it got spreaded all across Karnataka, neighboring states like Tamil Nadu, Kerala, Araku Valley, Andhra Pradesh and some of the northeastern states like Odisha, Meghalaya, Shillong, Sikkim etc. are also into coffee cultivation. So coffee mass produce करने के लिए you need a typical weather condition like tropical, subtropical climate condition. So temperature has to be in between 12 degrees to 37-38 degrees. ज़्यादातर वो लोग hill stations और slopes इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि मलनाड एरिया वेस्टर्न घाट्स में बारिश कंटिन्यूस ज़्यादा होता है, पानी का फ्लो एकदम फ्री होना चाहिए, रूट के आजू बाजू में जमा नहीं होना चाहिए. सो प्रोवाइडेड इफ यू आर कल्टिवेटिंग इट ऑन अ लेवल सरफेस यू हैव टू डिग अप ट्रेंचेस इन बिटवीन 2 rows ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स. इधर भी वैसा करना चाहिए क्योंकि जो भी हम लोग मेन्यूरिंग देंगे अगर अगले दिन या उसी दिन जोर से बारिश हो जाएगा तो पूरा मेन्यूर बह जाएगा. सो इफ़ यू डिग अप ट्रेंचेस वो पूरा उधर ही रहेंगे, रूट्स फिर से उसको पुल कर देगा. So average rainfall annually between 1200 to 2800 millimeters must and should. So इसके अलावा altitude above sea level right from 2000 to almost 20,000 feet it is very ideal for coffee cultivation. So especially Arabica के लिए जितना ऊंचाई में होता है altitude उतना ही best होगा bean size, quality and quantity. So that is why पूरे दुनिया में Brazil produces the world's 70% of coffee just because of 3 reasons. Suitable favorable weather conditions, higher elevation or altitude where they cultivate their crops on, and lastly the fertility of their soil. जहाँ वो लोग यूज़ करते हैं volcanic ash वाला soil, the black soil that is naturally rich with nitrogen and potassium, इसलिए उसका bean size बड़ा होता है, दुनिया का एकदम बेहतरीन माना जाता है. So इधर भी India's best coffee comes out from Chikmagalur in Karnataka. So इंडिया का 70% कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है हमारा कर्नाटका स्टेट में. So Karnataka में नंबर 1 पोजीशन गोज टू चिकमंगलुरु, सेकंड इज कूर्ग और कोडगु, थर्ड इज सकलेशपुर. इसके अलावा हासन, मैसूर, मद्दूर, मंड्या ऑलमोस्ट टिल चटपटना कॉफ़ी उगाते हैं एक्चुअली. सो अरेबिका प्लांट का लाइफ स्पैन इज अराउंड 70 ईयर्स, रोबस्टा 120 ईयर्स, लिबेरिका 70 ईयर्स. सो आइडियल हाइट ऑफ अरेबिका हम लोग मेंटेन करेंगे 4.5 to 5 फीट पर, उसके ऊपर से काट देंगे, नहीं तो नेग्लेक्ट करने से वो बड़ा पेड़ जैसा हो जाएगा, ज़्यादा यील्डिंग नहीं होगा उसमें. So Robusta 6.5 to 7 feet last height. So Liberica, as I said, it is a tree coffee, around 40-50 feet तक चला जाता है. So initially जहाँ भी वो सूखा हुआ पूल दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का, उधर टाइनी स्पाइक्स और बड्स रहता है ग्रीन इन कलर. जहाँ मार्च के महीने में वील एक्सपेक्ट रेनफॉल टू हैपन अराउंड 1 मिलीमीटर. जैसे ही बारिश हो जाएगा उधर वाइट बंच ऑफ फ्लावर्स खिल जाते हैं. So whole estate will be filled up with bunch of white flowers. Those are basically coffee flowers with very strong aroma of jasmine होता है. So natural pollination keeps happening by birds, honeybees, butterflies वगैरह. So धीरे धीरे 3 हफ्ते में पूल पूरा ऐसे सूखता है. उस टाइम हम लोगों को एक पक्का बैकअप बारिश चाहिए. अभी बारिश हुआ नहीं. Yesterday we were in fact expecting a rainfall that has not happened. So बैकअप rainfall भी 1 meter या उसमें उससे भी ज़्यादा होगा तो it is very good. Those are very good signs for a good harvesting for coming season. अगर बारिश नहीं होता है तो we usually go for sprinkler system, artificial irrigation. So जैसे ही पूरा बारिश हो जाएगा पूल पूरा नीचे गिर जाएगा, उधर टाइनी बीन फॉर्मेशन हो जाएगा जस्ट लाइक वाइट कलर डॉट्स. धीरे धीरे ग्रीन कलर का पूरा अपना साइज में उग जाएगा, पक जाएगा बाय द मंथ ऑफ नवंबर. पकने के बाद एकदम चेरी रेड और क्रिम्सन रेड कलर का हो जाएगा. दैट्स द स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग. यूजुअली नवंबर से शुरू होता है तो फरवरी मार्च एंड तक चलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ योर एस्टेट. सो एक बार पूरा बीन्स पक जाएगा. सो नॉर्मली फ्रॉम द स्पाइक और बड स्टेज टू द राइप बीन स्टेज इट विल टेक अराउंड 8 to 10 months. इसलिए कॉफ़ी हार्वेस्टिंग साल में एक ही बार होता है.
सो जनरली नवंबर से मार्च एंड तक होता है. सो एक बार पूरा पकने पर वी यूजुअली गो फॉर ट्रेडिशनल मैनुअल पिकिंग. हाथ से तोड़ते हैं कॉफ़ी को, पूरा बीन्स को निकालेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉफ़ी, कॉल्ड चेरी कॉफ़ी बीन और कॉफ़ी फ्रूट. तो अगर इसी स्टेज में आपको कॉफ़ी को स्टोरेज में रखना है तो इसको कम से कम 3 हफ्ता या 4 हफ्ता धूप में तब तक सुखाना है. तब तक व्हेन यू होल्ड अ बंच ऑफ बीन्स एंड शेक इट, लिटरली यू विल फील द इनर सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर शेल. तब तक ऑलमोस्ट 70% मॉइस्चर सूखेगा, फिर भी बचा कुचा 5-10% मॉइस्चर ऐसे ही रहेगा बीन्स के अंदर. दैट इज़ वाई द सन ड्राइड बीन्स आर सपोज टू बी स्टोर्ड इन जूट बैग्स, नॉट एयरटाइट बैग्स और कंटेनर्स, जो फंगस होके सड़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं. बाद में यू कैन स्टोर इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, इवन फॉर 5 years, 3 years, 10 years एक्सेट्रा. बाद में और सूखा हुआ बीन्स को अगर सेकेंड स्टेज पर लेके आना है, जिसको ग्रीन बीन और पार्चमेंट बोलते हैं, सो इसका छिलका निकालना पड़ेगा. सो द डी स्किनिंग हैपन्स इन अ हल्लर मशीन, स्पेशली ड्राई बीन्स का. दैट इज कॉल्ड ड्राई प्रोसेसिंग. सो दैट विल ब्रिंग योर बीन्स टू द सेकेंड स्टेज कॉल्ड ग्रीन बीन और पार्चमेंट स्टेज होता है. तो ऐसा 2 बीन होता है. ऑलमोस्ट तीनों वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स में 80% कॉफ़ी चेरी फ्रूट के अंदर ऐसा 2 बीन होते हैं. बाकी 20% बीन्स के अंदर एक, आई मीन कॉफ़ी चेरी फ्रूट के अंदर एक ही बीन होगा. दोज आर यूजुअली कॉल्ड एज प्री मैच्योर्ड कॉफ़ी बीन्स और पीबेरी कॉफ़ी बीन्स. So earlier a bunch of people used to sit together, hand separate all those beans according to their sizes. Aajkal almost everything happens in a machinery. So pea-berry beans are very mild in aroma and taste, can be individually consumed or can be blended with other varieties of coffees. So this is the second stage of coffee called green bean or parchment. इसमें भी और एक पतला सा लेयर होते हैं जिसको हस्क बोलते हैं. That will get removed while the beans are getting roasted. इसलिए कॉफ़ी का रेशियो 1:4 होते हैं, जहाँ 4 kg पका हुआ बीन्स रोस्टिंग होने तक 1 ही kg बनेगा. क्योंकि आउटर मोस्ट छिलका निकलेगा, मॉइस्चर 80% सूखेगा, हस्क लेयर निकलेगा, बीन्स थोड़ा फ्लफी पापड़ जैसा हो जाता है, इसलिए वेट रेशियो टेंड्स टू गो डाउन एक्चुअली. सो विदाउट सन ड्राइंग अगर इमीडिएटली रेड कलर बीन्स को जैसे ही आप निकालेंगे, उसको सेकेंड स्टेज में लेके आना है तो उसका छिलका हटेगा पल्पर मशीन से. वो अंदर का सीड को अच्छा सा वॉश करके बाहर भेजेगा. That will be called as wet processing. So these wet and dry processing methods, it will bring your coffee to the second stage called green bean or parchment. या इस स्टेज में बीन्स को 1 हफ्ता सुखाने के बाद यू कैन गो फॉर स्टोरेज फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम वंस अगेन. सो बाद में वहाँ से थर्ड स्टेज में हो जाएगा रोस्टिंग में, जहाँ प्लेंटी ऑफ वेराइटीज़ ऑफ रोस्टिंग होता है. सो रोस्टिंग के बाद चौथा स्टेज में पाउडरिंग होके डायरेक्टली टू गो फॉर कंजम्पशन. नहीं तो लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज में अगर आपके कॉफ़ी के साथ कुछ चिकोरी, स्पाइसेस, हर्ब्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स लाइक वनीला, हेजलनट, एप्पल, पीच, बोरबॉन वगैरह मिलाना है तो दैट विल हैपन इन द फिफ्थ स्टेज. So these 5 basic stages literally to bring your coffee beans to your drinking cup as coffee. तो इसके अलावा हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट्स में प्रूनिंग होगा. सो ऑल द अनवांटेड ब्रांचेस, ड्राई ब्रांचेस विथ वेरी लेस स्पाइक्स और बड्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्रोथ निकलते रहते हैं मेन स्टेम से, उन सबको बेस में से काट के हटा देंगे. नहीं तो यील्डिंग कम हो जाएगा, बचा कुछ यील्डिंग का क्वालिटी बिलो एवरेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है. So pruning it is very mandatory once or twice in a year. Pruning के बाद generally we are going for manuring. अभी ये 15 एकड़ बड़ा estate है, 20 साल पुराना है. We are going for 6 times manuring. 3 times it is a mix of organic mix of neem cake and cow dung. Other 3 times it is chemical fertilizers का mix होता है like potassium, nitrate, urea, sulfur and phosphorus. So the more number of times you go for manuring, it is well and good for the plants. पानी के लिए except in the month of March, April, we usually go for sprinkler system. गर्मी ज़्यादा रहते हैं, बाकी के टाइम totally it is dependable upon the rainfall. Until and unless only when your plants are below 5 years, रोज़ पानी देना बहुत अच्छा है प्लांट्स के लिए. So इसके अलावा प्लांट्स के बीच में खाली गैप सरफेस है, एकदम पूरा साफ सफाई में रखना है. So wild weed cutting, cleaning, everything goes on every once in 3 or 4 months. ऐसे पूरे एस्टेट में काम चलता रहते हैं. So 365 डेज में चलता रहता है काम. 15 एकड़ में 5 लोग काफ़ी होता है काम करने के लिए, एक्सेप्ट ओनली ड्यूरिंग कॉफ़ी हार्वेस्टिंग, पेपर का हार्वेस्टिंग, कुछ और चीज़ों का हार्वेस्टिंग हो तो वील नीड मोर